صبح کی ہلکی ہلکی دھند ابھی مکمل طور پر چھٹی بھی نہیں تھی کہ رابعہ اپنی حویلی کی بالکونی میں کھڑی دور پہاڑوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ کسی ایسے راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو جو برسوں سے اس کے دل میں دفن تھا۔ نیچے صحن میں ملازم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، مگر حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران شیردل گاڑی سے اتر کر حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں، جیسے وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جس سے اسے بہت ضروری بات کرنی ہو۔ رابعہ نے اسے آتے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے چونک گئی، مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ شیردل نے اندر آتے ہی کہا، رابعہ اب مزید خاموش رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے آج فیصلہ نہ کیا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رابعہ نے آہستہ سے جواب دیا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن کچھ فیصلے صرف جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لمحے زعفران خان اپنی لاٹھی کے سہارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر برسوں کا تجربہ اور آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم سچ جانتے ہو، لیکن اصل حقیقت ابھی تمہارے سامنے آئی ہی نہیں۔ یہ الفاظ سن کر دونوں خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف سربلند کافی دنوں بعد شہر واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا مدثر کے دفتر پہنچا۔ مدثر نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اس دوران بہت کچھ بدل چکا ہے۔ سربلند نے حیرت سے پوچھا، کیا رابعہ ٹھیک ہے؟ مدثر نے گہرا سانس لیا اور بولا، رابعہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ سن کر سربلند فوراً حویلی جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر شیر بانو مسلسل یہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بازار سے واپس آ رہی تھی کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ رکھ دیا اور ہجوم میں غائب ہو گیا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنے خاندان کو بچانا چاہتی ہو تو آج رات 12 بجے پرانی فیکٹری ضرور آنا۔ شیر بانو خوفزدہ ہو گئی، مگر اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ دوسری طرف ماگل نے زعفران خان کو فون پر کسی نامعلوم شخص سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وقت آ گیا ہے، اب کوئی بھی ہمارے راستے میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کر ماگل پریشان ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زعفران خان کسی بہت بڑی سازش میں شامل ہے۔ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سجاد سوم اسٹوڈیو۔ رات کے 12 بجنے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ شیر بانو ہمت کر کے پرانی فیکٹری پہنچ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اچانک ایک پرانا بلب جل اٹھا۔ سامنے ایک شخص سیاہ لباس میں کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ شیر بانو نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک پرانی ڈائری اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسے پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ شیر بانو نے جیسے ہی ڈائری کھولی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر زعفران خان کی تصویر تھی، مگر اس کے نیچے لکھا نام کچھ اور تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ شیر بانو نے موڑ کر دیکھا تو شیردل اور سربلند دونوں وہاں موجود تھے۔ شیردل نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ شیر بانو جواب دیتی، اچانک فیکٹری کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی، ہر طرف دھواں پھیل گیا اور سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ چند لمحوں بعد جب روشنی واپس آئی تو وہ پراسرار شخص غائب ہو چکا تھا، اور شیر بانو کے ہاتھ سے وہ ڈائری بھی لاپتہ تھی۔ صرف زمین پر ایک ٹوٹا ہوا لاکٹ پڑا تھا، جسے دیکھتے ہی شیردل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ تو برسوں پہلے دفن ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔ فیکٹری میں دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ شیردل نے فوراً شیر بانو کو آواز دی، مگر جواب نہ آیا۔ سربلند نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو زمین پر صرف ٹوٹا ہوا لاکٹ نظر آیا۔ شیردل نے لاکٹ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لاکٹ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے تو اسے برسوں پہلے اپنی آنکھوں سے دفن ہوتے دیکھا تھا۔ سربلند نے حیرانی سے پوچھا، آخر اس لاکٹ میں ایسی کیا بات ہے؟ شیردل نے گہرا سانس لیا اور بولا، یہ صرف ایک لاکٹ نہیں، یہ اس راز کی آخری نشانی ہے جسے زعفران خان نے ہمیشہ کے لیے دفن سمجھ لیا تھا۔ دوسری طرف رابعہ پوری رات بے چین رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنے خاندان کو بچانا چاہتی ہو تو کسی پر بھی اعتبار مت کرنا، خاص طور پر مدثر پر۔ یہ پیغام پڑھ کر رابعہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مدثر ہمیشہ اس کا خیرخواہ رہا ہے، لیکن اب اس کے دل میں بھی شک پیدا ہونے لگا۔ ادھر مدثر اپنے دفتر میں پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک بند لفافہ میز پر گرا۔ اس نے کھولا تو اندر ایک تصویر تھی جس میں زعفران خان کسی نامعلوم شخص کے ساتھ کھڑا تھا۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ مدثر فوراً تصویر لے کر رابعہ کے پاس پہنچا، مگر وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ رابعہ پہلے ہی کسی گہری سوچ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رابعہ، ہمیں اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ رابعہ نے تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ شخص، میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، مگر سب کہتے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ اسی دوران ماگل نے شیر بانو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ وہ سیدھی زعفران خان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا ہے۔ کل رات کا منصوبہ ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ڈائری ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے تھی۔
माँ गिल ये सुनते ही खामोशी से वापस आ गई। अब इसे यकीन हो गया था कि ज़ाफ़रान खान कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। सुबह होते ही शेरदिल, सरबुलंद और मुदस्सिर एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार शख्स को तलाश करेंगे जिसने शेर बानो को फैक्ट्री बुलाया था। तहकीकात करते करते उन्हें शहर के किनारे एक पुराना गोदाम मिला। दरवाज़ा बंद था मगर अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। शेरदिल ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था मगर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी हुई थीं। हैरत की बात यह थी कि इन तमाम तस्वीरों में राबिया, शेरदिल, सरबुलंद, मुदस्सिर, शेर बानो और ज़ाफ़रान खान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों से इन सब पर नज़र रखे हुए था। अचानक एक रिकॉर्ड शदा आवाज़ गूंजी। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि तुम हकीकत के बहुत करीब हो। लेकिन याद रखना, सच की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इतने में एक खुफिया दरवाज़ा खुला और वहां शेर बानो बेहोशी की हालत में मिली। सब ने इसे संभाला। जब इसे होश आया तो इसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो शख्स कह रहा था कि ज़ाफ़रान खान वो नहीं जो दुनिया समझती है, और राबिया की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। ये सुनते ही अचानक गोदाम के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। शेरदिल ने खिड़की से बाहर देखा तो कई निकाब पोश अफराद इमारत को चारों तरफ से घेर चुके थे। सरबुलंद ने फौरन कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो बाहर जाने लगे, गोदाम का मरकजी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक निकाब पोश शख्स नमूदार हुआ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे जाल में आ चुके हो। अब फैसला मैं करूंगा कि इस खानदान की जंजीरें टूटेंगी, हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, जबकि स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गई। सुबह की हल्की हल्की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी भी नहीं थी कि राबिया अपनी हवेली की बालकोनी में खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए हो जो बरसों से इसके दिल में दफन था। नीचे सहन में मुलाजिम अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में लगे हुए थे, मगर हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी दौरान शेरदिल गाड़ी से उतरकर हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो जिससे इसे बहुत ज़रूरी बात करनी हो। राबिया ने इसे आते देखा तो चंद लम्हों के लिए चौंक गई, मगर फिर खुद को संभाल लिया। शेरदिल ने अंदर आते ही कहा, राबिया, अब मजीद खामोश रहने का वक्त खत्म हो गया है। अगर हमने आज फैसला न किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। राबिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं किए जा सकते। इसी लम्हे ज़ाफ़रान खान अपनी लाठी के सहारे कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बरसों का तजर्बा और आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम सच जानते हो, लेकिन असल हकीकत अभी तुम्हारे सामने आई ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर दोनों खामोश हो गए। दूसरी तरफ सरबुलंद काफी दिनों बाद शहर वापस आया था। वो सीधा मुदस्सिर के दफ्तर पहुंचा। मुदस्सिर ने इसे देखते ही कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। सरबुलंद ने हैरत से पूछा, क्या राबिया ठीक है? मुदस्सिर ने गहरा सांस लिया और बोला, राबिया ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर सरबुलंद फौरन हवेली जाने का फैसला करता है। उधर शेर बानो मुसलसल ये महसूस कर रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो बाजार से वापस आ रही थी कि एक नामालूम शख्स ने इसके हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया और हुजूम में गायब हो गया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री जरूर आना। शेर बानो खौफजदा हो गई, मगर उसने किसी को कुछ ना बताया। दूसरी तरफ मागिल ने ज़ाफ़रान खान को फोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए सुन लिया। वक्त आ गया है, अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। ये सुनकर मागिल परेशान हो गई। इसे यकीन हो गया कि ज़ाफ़रान खान किसी बहुत बड़ी साजिश में शामिल है। अगर ये आपको कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सज्जाद सोम स्टूडियो। रात के 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। शेर बानो हिम्मत करके पुरानी फैक्ट्री पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक पुराना बल्ब जल उठा। सामने एक शख्स सियाह लिबास में खड़ा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। शेर बानो ने पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब देने के बजाय एक पुरानी डायरी इसके हाथ में रख दी। इसे पढ़ लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। शेर बानो ने जैसे ही डायरी खोली, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। डायरी के पहले सफ़े पर ज़ाफ़रान खान की तस्वीर थी, मगर उसके नीचे लिखा नाम कुछ और था। इसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। शेर बानो ने मुड़कर देखा तो शेरदिल और सरबुलंद दोनों वहां मौजूद थे। शेरदिल ने हैरत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि शेर बानो जवाब देती, अचानक फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बंद हो गईं।
अंधेरे में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, हर तरफ धुआं फैल गया और सब एक दूसरे से बिछड़ गए। चंद लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो वो पुरस्कार शख्स गायब हो चुका था और शेरबानो के हाथ से वो डायरी भी लापता थी। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ लॉकेट पड़ा था जिसे देखते ही शेरदिल का रंग उड़ गया। वो धीमी आवाज में बोला, ये तो बरसों पहले दफन हो चुका था। जारी है। फैक्ट्री में धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैला हुआ था। शेरदिल ने फौरन शेरबानो को आवाज दी मगर जवाब न आया। सरबुलंद ने मोबाइल की टार्च जलाई तो जमीन पर सिर्फ टूटा हुआ लॉकेट नजर आया। शेरदिल ने लॉकेट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये लॉकेट यहां कैसे आ सकता है? मैंने तो इसे बरसों पहले अपनी आंखों से दफन होते देखा था। सरबुलंद ने हैरानी से पूछा, आखिर इस लॉकेट में ऐसी क्या बात है? शेरदिल ने गहरा सांस लिया और बोला, ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं, ये इस राज की आखिरी निशानी है जिसे ज़ाफ़रान खान ने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। दूसरी तरफ राबिया पूरी रात बेचैन रही। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो किसी पर भी एतबार मत करना, खास तौर पर मुदस्सिर पर। यह पैगाम पढ़कर राबिया हैरान रह गई। वो जानती थी कि मुदस्सिर हमेशा इसका खैरखा रहा है, लेकिन अब उसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। उधर मुदस्सिर अपने दफ्तर में पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक एक बंद लिफाफा मेज पर गिरा। इसने खोला तो अंदर एक तस्वीर थी जिसमें ज़ाफ़रान खान किसी नामालूम शख्स के साथ खड़ा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, असल खेल अब शुरू होगा। मुदस्सिर फौरन तस्वीर लेकर राबिया के पास पहुंचा, मगर वहां पहुंचते ही इसने देखा कि राबिया पहले ही किसी गहरी सोच में बैठी हुई है। राबिया, हमें अब मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। राबिया ने तस्वीर देखी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये शख्स, मैंने इसे बचपन में देखा था, मगर सब कहते थे कि वो मर चुका है। इसी दौरान मागिल ने शेरबानो को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। वो सीधी ज़ाफ़रान खान के कमरे में गई तो देखा कि वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। कल रात का मंसूबा नाकाम नहीं होना चाहिए था। वो डायरी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए थी। मागिल ये सुनते ही खामोशी से वापस आ गई। अब इसे यकीन हो गया था कि ज़ाफ़रान खान कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। सुबह होते ही शेरदिल, सरबुलंद और मुदस्सिर एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार शख्स को तलाश करेंगे जिसने शेरबानो को फैक्ट्री बुलाया था। तहकीकात करते करते उन्हें शहर के किनारे एक पुराना गोदाम मिला। दरवाज़ा बंद था मगर अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। शेरदिल ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था मगर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी हुई थीं। हैरत की बात यह थी कि इन तमाम तस्वीरों में राबिया, शेरदिल, सरबुलंद, मुदस्सिर, शेरबानो और ज़ाफ़रान खान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों से इन सब पर नज़र रखे हुए था। अचानक एक रिकॉर्ड शदा आवाज़ गूंजी, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि तुम हकीकत के बहुत करीब हो, लेकिन याद रखना, सच की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इतने में एक खुफिया दरवाज़ा खुला और वहां शेरबानो बेहोशी की हालत में मिली। सब ने इसे संभाला। जब इसे होश आया तो इसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो शख्स कह रहा था कि ज़ाफ़रान खान वो नहीं जो दुनिया समझती है, और राबिया की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। ये सुनते ही अचानक गोदाम के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। शेरदिल ने खिड़की से बाहर देखा तो कई निकाब पोश अफराद इमारत को चारों तरफ से घेर चुके थे। सरबुलंद ने फौरन कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो बाहर जाने लगे, गोदाम का मरकजी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक निकाब पोश शख्स नमूदार हुआ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे जाल में आ चुके हो। अब फैसला मैं करूंगा कि इस खानदान की जंजीरें टूटेंगी, हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, जबकि स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गई। सुबह की हल्की हल्की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी भी नहीं थी कि राबिया अपनी हवेली की बालकोनी में खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए हो जो बरसों से इसके दिल में दफन था। नीचे सहन में मुलाजिम अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में लगे हुए थे, मगर हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी दौरान शेरदिल गाड़ी से उतरकर हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो जिससे इसे बहुत ज़रूरी बात करनी हो। राबिया ने इसे आते देखा तो चंद लम्हों के लिए चौंक गई, मगर फिर खुद को संभाल लिया। शेरदिल ने अंदर आते ही कहा, राबिया, अब मजीद खामोश रहने का वक्त खत्म हो गया है।
अगर हमने आज फैसला न किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। राबिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं किए जा सकते। इसी लम्हे ज़ाफ़रान खान अपनी लाठी के सहारे कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बरसों का तजर्बा और आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम सच जानते हो, लेकिन असल हकीकत अभी तुम्हारे सामने आई ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर दोनों खामोश हो गए। दूसरी तरफ सरबुलंद काफी दिनों बाद शहर वापस आया था। वो सीधा मुदस्सिर के दफ्तर पहुंचा। मुदस्सिर ने इसे देखते ही कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। सरबुलंद ने हैरत से पूछा, क्या राबिया ठीक है? मुदस्सिर ने गहरा सांस लिया और बोला, राबिया ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर सरबुलंद फौरन हवेली जाने का फैसला करता है। उधर शेर बानो मुसलसल ये महसूस कर रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो बाजार से वापस आ रही थी कि एक नामालूम शख्स ने इसके हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया और हुजूम में गायब हो गया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री जरूर आना। शेर बानो खौफजदा हो गई, मगर उसने किसी को कुछ ना बताया। दूसरी तरफ मागिल ने ज़ाफ़रान खान को फोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए सुन लिया। वक्त आ गया है, अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। ये सुनकर मागिल परेशान हो गई। इसे यकीन हो गया कि ज़ाफ़रान खान किसी बहुत बड़ी साजिश में शामिल है। अगर ये आपको कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सज्जाद सोम स्टूडियो। रात के 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। शेर बानो हिम्मत करके पुरानी फैक्ट्री पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक पुराना बल्ब जल उठा। सामने एक शख्स सियाह लिबास में खड़ा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। शेर बानो ने पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब देने के बजाय एक पुरानी डायरी इसके हाथ में रख दी। इसे पढ़ लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। शेर बानो ने जैसे ही डायरी खोली, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। डायरी के पहले सफ़े पर ज़ाफ़रान खान की तस्वीर थी, मगर उसके नीचे लिखा नाम कुछ और था। इसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। शेर बानो ने मुड़कर देखा तो शेरदिल और सरबुलंद दोनों वहां मौजूद थे। शेरदिल ने हैरत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि शेर बानो जवाब देती, अचानक फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी, हर तरफ धुआं फैल गया और सब एक दूसरे से बिछड़ गए। चंद लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो वो पुरस्कार शख्स गायब हो चुका था और शेर बानो के हाथ से वो डायरी भी लापता थी। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ लाकेट पड़ा था, जिसे देखते ही शेरदिल का रंग उड़ गया। वो धीमी आवाज में बोला, ये तो बरसों पहले दफन हो चुका था। जारी है। फैक्ट्री में धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैला हुआ था। शेरदिल ने फौरन शेर बानो को आवाज दी, मगर जवाब न आया। सरबुलंद ने मोबाइल की टार्च जलाई तो जमीन पर सिर्फ टूटा हुआ लाकेट नजर आया। शेरदिल ने लाकेट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये लाकेट यहां कैसे आ सकता है? मैंने तो इसे बरसों पहले अपनी आंखों से दफन होते देखा था। सरबुलंद ने हैरानी से पूछा, आखिर इस लाकेट में ऐसी क्या बात है? शेरदिल ने गहरा सांस लिया और बोला, ये सिर्फ एक लाकेट नहीं, ये इस राज की आखिरी निशानी है जिसे ज़ाफ़रान खान ने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। दूसरी तरफ राबिया पूरी रात बेचैन रही। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो किसी पर भी एतबार मत करना, खास तौर पर मुदस्सिर पर। यह पैगाम पढ़कर राबिया हैरान रह गई। वो जानती थी कि मुदस्सिर हमेशा इसका खैरखा रहा है, लेकिन अब उसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। उधर मुदस्सिर अपने दफ्तर में पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक एक बंद लिफाफा मेज पर गिरा। इसने खोला तो अंदर एक तस्वीर थी जिसमें ज़ाफ़रान खान किसी नामालूम शख्स के साथ खड़ा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, असल खेल अब शुरू होगा। मुदस्सिर फौरन तस्वीर लेकर राबिया के पास पहुंचा, मगर वहां पहुंचते ही इसने देखा कि राबिया पहले ही किसी गहरी सोच में बैठी हुई है। राबिया, हमें अब मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। राबिया ने तस्वीर देखी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये शख्स, मैंने इसे बचपन में देखा था, मगर सब कहते थे कि वो मर चुका है। इसी दौरान मागिल ने शेर बानो को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। वो सीधी ज़ाफ़रान खान के कमरे में गई तो देखा कि वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। कल रात का मंसूबा नाकाम नहीं होना चाहिए था। वो डायरी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए थी। मागिल ये सुनते ही खामोशी से वापस आ गई। अब इसे यकीन हो गया था कि ज़ाफ़रान खान कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। सुबह होते ही शेरदिल, सरबुलंद और मुदस्सिर एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार शख्स को तलाश करेंगे जिसने शेर बानो को फैक्ट्री बुलाया था। तहकीकात करते करते उन्हें शहर के किनारे एक पुराना गोदाम मिला। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। शेरदिल ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी हुई थीं।
हैरत की बात यह थी कि इन तमाम तस्वीरों में राबिया, शेरदिल, सरबुलंद, मुदस्सिर, शेर बानो और ज़ाफ़रान खान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों से इन सब पर नज़र रखे हुए था। अचानक एक रिकॉर्ड शदा आवाज़ गूंजी। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि तुम हकीकत के बहुत करीब हो। लेकिन याद रखना, सच की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इतने में एक खुफिया दरवाज़ा खुला और वहां शेर बानो बेहोशी की हालत में मिली। सब ने इसे संभाला। जब इसे होश आया तो इसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो शख्स कह रहा था कि ज़ाफ़रान खान वो नहीं जो दुनिया समझती है, और राबिया की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। ये सुनते ही अचानक गोदाम के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। शेरदिल ने खिड़की से बाहर देखा तो कई निकाब पोश अफराद इमारत को चारों तरफ से घेर चुके थे। सरबुलंद ने फौरन कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो बाहर जाने लगे, गोदाम का मरकजी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक निकाब पोश शख्स नमूदार हुआ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे जाल में आ चुके हो। अब फैसला मैं करूंगा कि इस खानदान की जंजीरें टूटेंगी, हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, जबकि स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गई। सुबह की हल्की हल्की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी भी नहीं थी कि राबिया अपनी हवेली की बालकोनी में खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए हो जो बरसों से इसके दिल में दफन था। नीचे सहन में मुलाजिम अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में लगे हुए थे, मगर हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी दौरान शेरदिल गाड़ी से उतरकर हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो जिससे इसे बहुत ज़रूरी बात करनी हो। राबिया ने इसे आते देखा तो चंद लम्हों के लिए चौंक गई, मगर फिर खुद को संभाल लिया। शेरदिल ने अंदर आते ही कहा, राबिया, अब मजीद खामोश रहने का वक्त खत्म हो गया है। अगर हमने आज फैसला न किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। राबिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं किए जा सकते। इसी लम्हे ज़ाफ़रान खान अपनी लाठी के सहारे कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बरसों का तजर्बा और आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम सच जानते हो, लेकिन असल हकीकत अभी तुम्हारे सामने आई ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर दोनों खामोश हो गए। दूसरी तरफ सरबुलंद काफी दिनों बाद शहर वापस आया था। वो सीधा मुदस्सिर के दफ्तर पहुंचा। मुदस्सिर ने इसे देखते ही कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। सरबुलंद ने हैरत से पूछा, क्या राबिया ठीक है? मुदस्सिर ने गहरा सांस लिया और बोला, राबिया ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर सरबुलंद फौरन हवेली जाने का फैसला करता है। उधर शेर बानो मुसलसल ये महसूस कर रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो बाजार से वापस आ रही थी कि एक नामालूम शख्स ने इसके हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया और हुजूम में गायब हो गया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री जरूर आना। शेर बानो खौफजदा हो गई, मगर उसने किसी को कुछ ना बताया। दूसरी तरफ मागिल ने ज़ाफ़रान खान को फोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए सुन लिया। वक्त आ गया है, अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। ये सुनकर मागिल परेशान हो गई। इसे यकीन हो गया कि ज़ाफ़रान खान किसी बहुत बड़ी साजिश में शामिल है। अगर ये आपको कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सज्जाद सोम स्टूडियो। रात के 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। शेर बानो हिम्मत करके पुरानी फैक्ट्री पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक पुराना बल्ब जल उठा। सामने एक शख्स सियाह लिबास में खड़ा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। शेर बानो ने पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब देने के बजाय एक पुरानी डायरी इसके हाथ में रख दी। इसे पढ़ लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। शेर बानो ने जैसे ही डायरी खोली, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। डायरी के पहले सफ़े पर ज़ाफ़रान खान की तस्वीर थी, मगर उसके नीचे लिखा नाम कुछ और था। इसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। शेर बानो ने मुड़कर देखा तो शेरदिल और सरबुलंद दोनों वहां मौजूद थे। शेरदिल ने हैरत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि शेर बानो जवाब देती, अचानक फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी, हर तरफ धुआं फैल गया और सब एक दूसरे से बिछड़ गए। चंद लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो वो पुरस्रार शख्स गायब हो चुका था, और शेर बानो के हाथ से वो डायरी भी लापता थी। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ लाकेट पड़ा था, जिसे देखते ही शेरदिल का रंग उड़ गया। वो धीमी आवाज में बोला, ये तो बरसों पहले दफन हो चुका था। जारी है। फैक्ट्री में धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैला हुआ था। शेरदिल ने फौरन शेर बानो को आवाज दी, मगर जवाब न आया। सरबुलंद ने मोबाइल की टार्च जलाई तो जमीन पर सिर्फ टूटा हुआ लाकेट नजर आया। शेरदिल ने लाकेट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये लाकेट यहां कैसे आ सकता है? मैंने तो इसे बरसों पहले अपनी आंखों से दफन होते देखा था।
सरबुलंद ने हैरानी से पूछा, आखिर इस लाकित में ऐसी क्या बात है? शेरदिल ने गहरा सांस लिया और बोला, ये सिर्फ एक लाकित नहीं, ये इस राज की आखिरी निशानी है जिसे ज़ाफ़रान खान ने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। दूसरी तरफ राबिया पूरी रात बेचैन रही। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक इसके फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो किसी पर भी एतबार मत करना, खास तौर पर मुदस्सिर पर। यह पैगाम पढ़कर राबिया हैरान रह गई। वो जानती थी कि मुदस्सिर हमेशा इसका खैरखा रहा है, लेकिन अब उसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। उधर मुदस्सिर अपने दफ्तर में पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक एक बंद लिफाफा मेज पर गिरा। इसने खोला तो अंदर एक तस्वीर थी जिसमें ज़ाफ़रान खान किसी नामालूम शख्स के साथ खड़ा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, असल खेल अब शुरू होगा। मुदस्सिर फौरन तस्वीर लेकर राबिया के पास पहुंचा, मगर वहां पहुंचते ही इसने देखा कि राबिया पहले ही किसी गहरी सोच में बैठी हुई है। राबिया, हमें अब मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। राबिया ने तस्वीर देखी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये शख्स, मैंने इसे बचपन में देखा था, मगर सब कहते थे कि वो मर चुका है। इसी दौरान मागिल ने शेर बानो को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। वो सीधी ज़ाफ़रान खान के कमरे में गई तो देखा कि वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। कल रात का मंसूबा नाकाम नहीं होना चाहिए था। वो डायरी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए थी। मागिल ये सुनते ही खामोशी से वापस आ गई। अब इसे यकीन हो गया था कि ज़ाफ़रान खान कुछ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। सुबह होते ही शेरदिल, सरबुलंद और मुदस्सिर एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार शख्स को तलाश करेंगे जिसने शेर बानो को फैक्ट्री बुलाया था। तहकीकात करते करते उन्हें शहर के किनारे एक पुराना गोदाम मिला। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। शेरदिल ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी हुई थीं। हैरत की बात यह थी कि इन तमाम तस्वीरों में राबिया, शेरदिल, सरबुलंद, मुदस्सिर, शेर बानो और ज़ाफ़रान खान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों से इन सब पर नज़र रखे हुए था। अचानक एक रिकॉर्ड शदा आवाज़ गूंजी, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि तुम हकीकत के बहुत करीब हो, लेकिन याद रखना, सच की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इतने में एक खुफिया दरवाज़ा खुला और वहां शेर बानो बेहोशी की हालत में मिली। सब ने इसे संभाला। जब इसे होश आया तो इसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो शख्स कह रहा था कि ज़ाफ़रान खान वो नहीं जो दुनिया समझती है, और राबिया की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। ये सुनते ही अचानक गोदाम के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। शेरदिल ने खिड़की से बाहर देखा तो कई निकाब पोश अफराद इमारत को चारों तरफ से घेर चुके थे। सरबुलंद ने फौरन कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो बाहर जाने लगे, गोदाम का मरकजी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक निकाब पोश शख्स नमूदार हुआ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे जाल में आ चुके हो। अब फैसला मैं करूंगा कि इस खानदान की जंजीरें टूटेंगी, हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, जबकि स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गई। सुबह की हल्की हल्की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी भी नहीं थी कि राबिया अपनी हवेली की बालकोनी में खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए हो जो बरसों से इसके दिल में दफन था। नीचे सहन में मुलाजिम अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में लगे हुए थे, मगर हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी दौरान शेरदिल गाड़ी से उतरकर हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो जिससे इसे बहुत ज़रूरी बात करनी हो। राबिया ने इसे आते देखा तो चंद लम्हों के लिए चौंक गई, मगर फिर खुद को संभाल लिया। शेरदिल ने अंदर आते ही कहा, राबिया, अब मजीद खामोश रहने का वक्त खत्म हो गया है। अगर हमने आज फैसला न किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। राबिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं किए जा सकते। इसी लम्हे ज़ाफ़रान खान अपनी लाठी के सहारे कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बरसों का तजर्बा और आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम सच जानते हो, लेकिन असल हकीकत अभी तुम्हारे सामने आई ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर दोनों खामोश हो गए। दूसरी तरफ सरबुलंद काफी दिनों बाद शहर वापस आया था। वो सीधा मुदस्सिर के दफ्तर पहुंचा। मुदस्सिर ने इसे देखते ही कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। सरबुलंद ने हैरत से पूछा,
کیا رابعہ ٹھیک ہے؟ مدثر نے گہرا سانس لیا اور بولا، رابعہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ سن کر سربلند فوراً حویلی جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر شیر بانو مسلسل یہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بازار سے واپس آ رہی تھی کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ رکھ دیا اور ہجوم میں غائب ہو گیا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنے خاندان کو بچانا چاہتی ہو تو آج رات 12 بجے پرانی فیکٹری ضرور آنا۔ شیر بانو خوفزدہ ہو گئی مگر اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ دوسری طرف ماگل نے زعفران خان کو فون پر کسی نامعلوم شخص سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وقت آ گیا ہے، اب کوئی بھی ہمارے راستے میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کر ماگل پریشان ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زعفران خان کسی بہت بڑی سازش میں شامل ہے۔ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سجاد سوم اسٹوڈیو۔ رات کے 12 بجنے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ شیر بانو ہمت کر کے پرانی فیکٹری پہنچ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اچانک ایک پرانا بلب جل اٹھا۔ سامنے ایک شخص سیاہ لباس میں کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ شیر بانو نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک پرانی ڈائری اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسے پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ شیر بانو نے جیسے ہی ڈائری کھولی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر زعفران خان کی تصویر تھی مگر اس کے نیچے لکھا نام کچھ اور تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ شیر بانو نے مڑ کر دیکھا تو شیردل اور سربلند دونوں وہاں موجود تھے۔ شیردل نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ شیر بانو جواب دیتی اچانک فیکٹری کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی، ہر طرف دھواں پھیل گیا اور سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ چند لمحوں بعد جب روشنی واپس آئی تو وہ پراسرار شخص غائب ہو چکا تھا اور شیر بانو کے ہاتھ سے وہ ڈائری بھی لاپتہ تھی۔ صرف زمین پر ایک ٹوٹا ہوا لاکٹ پڑا تھا جسے دیکھتے ہی شیردل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ تو برسوں پہلے دفن ہو چکا تھا۔ جاری ہے۔ فیکٹری میں دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ شیردل نے فوراً شیر بانو کو آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ سربلند نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو زمین پر صرف ٹوٹا ہوا لاکٹ نظر آیا۔ شیردل نے لاکٹ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لاکٹ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے تو اسے برسوں پہلے اپنی آنکھوں سے دفن ہوتے دیکھا تھا۔ سربلند نے حیرانی سے پوچھا، آخر اس لاکٹ میں ایسی کیا بات ہے؟ شیردل نے گہرا سانس لیا اور بولا، یہ صرف ایک لاکٹ نہیں، یہ اس راز کی آخری نشانی ہے جسے زعفران خان نے ہمیشہ کے لیے دفن سمجھ لیا تھا۔ دوسری طرف رابعہ پوری رات بے چین رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنے خاندان کو بچانا چاہتی ہو تو کسی پر بھی اعتبار مت کرنا، خاص طور پر مدثر پر۔ یہ پیغام پڑھ کر رابعہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مدثر ہمیشہ اس کا خیرخواہ رہا ہے لیکن اب اس کے دل میں بھی شک پیدا ہونے لگا۔ ادھر مدثر اپنے دفتر میں پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک بند لفافہ میز پر گرا۔ اس نے کھولا تو اندر ایک تصویر تھی جس میں زعفران خان کسی نامعلوم شخص کے ساتھ کھڑا تھا۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ مدثر فوراً تصویر لے کر رابعہ کے پاس پہنچا مگر وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ رابعہ پہلے ہی کسی گہری سوچ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رابعہ، ہمیں اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ رابعہ نے تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ شخص، میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا مگر سب کہتے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ اسی دوران ماگل نے شیر بانو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ وہ سیدھی زعفران خان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا ہے۔ کل رات کا منصوبہ ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ڈائری ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ ماگل یہ سنتے ہی خاموشی سے واپس آ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ زعفران خان کچھ بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی شیردل، سربلند اور مدثر ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار شخص کو تلاش کریں گے جس نے شیر بانو کو فیکٹری بلایا تھا۔ تحقیقات کرتے کرتے انہیں شہر کے کنارے ایک پرانا گودام ملا۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ شیردل نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا مگر دیواروں پر درجنوں تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تمام تصویروں میں رابعہ، شیردل، سربلند، مدثر، شیر بانو اور زعفران خان موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی برسوں سے ان سب پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک ایک ریکارڈ شدہ آواز گونجی، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم حقیقت کے بہت قریب ہو، لیکن یاد رکھنا سچ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک خفیہ دروازہ کھلا اور وہاں شیر بانو بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ سب نے اسے سنبھالا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ زعفران خان وہ نہیں جو دنیا سمجھتی ہے، اور رابعہ کی زندگی کا سب سے بڑا راز ابھی سامنے آنا باقی ہے۔
ये सुनते ही अचानक गोदाम के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। शेरदिल ने खिड़की से बाहर देखा तो कई निकाब पोश अफराद इमारत को चारों तरफ से घेर चुके थे। सरबुलंद ने फौरन कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो बाहर जाने लगे गोदाम का मरकजी दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया। ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक निकाब पोश शख्स नमूदार हुआ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरे जाल में आ चुके हो। अब फैसला मैं करूंगा कि इस खानदान की जंजीरें टूटेंगी, हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे जबकि स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गई। सुबह की हल्की हल्की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी भी नहीं थी कि राबिया अपनी हवेली की बालकोनी में खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज का बोझ उठाए हुए हो जो बरसों से इसके दिल में दफन था। नीचे सहन में मुलाजिम अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में लगे हुए थे, मगर हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी दौरान शेरदिल गाड़ी से उतरकर हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो जिससे इसे बहुत ज़रूरी बात करनी हो। राबिया ने इसे आते देखा तो चंद लम्हों के लिए चौंक गई, मगर फिर खुद को संभाल लिया। शेरदिल ने अंदर आते ही कहा, राबिया, अब मजीद खामोश रहने का वक्त खत्म हो गया है। अगर हमने आज फैसला न किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। राबिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन कुछ फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं किए जा सकते। इसी लम्हे ज़ाफ़रान खान अपनी लाठी के सहारे कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बरसों का तजर्बा और आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम दोनों को लगता है कि तुम सच जानते हो, लेकिन असल हकीकत अभी तुम्हारे सामने आई ही नहीं। ये अल्फाज सुनकर दोनों खामोश हो गए। दूसरी तरफ सरबुलंद काफी दिनों बाद शहर वापस आया था। वो सीधा मुदस्सिर के दफ्तर पहुंचा। मुदस्सिर ने इसे देखते ही कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। सरबुलंद ने हैरत से पूछा, क्या राबिया ठीक है? मुदस्सिर ने गहरा सांस लिया और बोला, राबिया ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर सरबुलंद फौरन हवेली जाने का फैसला करता है। उधर शेर बानो मुसलसल ये महसूस कर रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो बाजार से वापस आ रही थी कि एक नामालूम शख्स ने इसके हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया और हुजूम में गायब हो गया। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री जरूर आना। शेर बानो खौफजदा हो गई, मगर उसने किसी को कुछ ना बताया। दूसरी तरफ मागिल ने ज़ाफ़रान खान को फ़ोन पर किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए सुन लिया। वक्त आ गया है, अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। ये सुनकर मागिल परेशान हो गई। इसे यकीन हो गया कि ज़ाफ़रान खान किसी बहुत बड़ी साजिश में शामिल है। अगर ये आपको कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सज्जाद सोम स्टूडियो। रात के 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। शेर बानो हिम्मत करके पुरानी फैक्ट्री पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक पुराना बल्ब जल उठा। सामने एक शख्स या लिबास में खड़ा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। शेर बानो ने पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब देने के बजाय एक पुरानी डायरी इसके हाथ में रख दी। इसे पढ़ लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। शेर बानो ने जैसे ही डायरी खोली, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। डायरी के पहले सफ़े पर ज़ाफ़रान खान की तस्वीर थी, मगर उसके नीचे लिखा नाम कुछ और था। इसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। शेर बानो ने मुड़कर देखा तो शेरदिल और सरबुलंद दोनों वहां मौजूद थे। शेरदिल ने हैरत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि शेर बानो जवाब देती, अचानक फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी, हर तरफ धुआं फैल गया और सब एक दूसरे से बिछड़ गए। चंद लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो वो पुरस्कार शख्स गायब हो चुका था और शेर बानो के हाथ से वो डायरी भी लापता थी। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ लॉकेट पड़ा था, जिसे देखते ही शेरदिल का रंग उड़ गया। वो धीमी आवाज में बोला, ये तो बरसों पहले दफन हो चुका था। जारी है। फैक्ट्री में धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैला हुआ था। शेरदिल ने फौरन शेर बानो को आवाज दी, मगर जवाब न आया। सरबुलंद ने मोबाइल की टार्च जलाई तो जमीन पर सिर्फ टूटा हुआ लॉकेट नजर आया। शेरदिल ने लॉकेट उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। ये लॉकेट यहां कैसे आ सकता है? मैंने तो इसे बरसों पहले अपनी आंखों से दफन होते देखा था। सरबुलंद ने हैरानी से पूछा, आखिर इस लॉकेट में ऐसी क्या बात है? शेरदिल ने गहरा सांस लिया और बोला, ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं, ये इस राज की आखिरी निशानी है जिसे ज़ाफ़रान खान ने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। दूसरी तरफ राबिया पूरी रात बेचैन रही। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो तो किसी पर भी एतबार मत करना, खास तौर पर मुदस्सिर पर। यह पैगाम पढ़कर राबिया हैरान रह गई। वो जानती थी कि मुदस्सिर हमेशा इसका खैरखा रहा है, लेकिन अब उसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। उधर मुदस्सिर अपने दफ्तर में पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक एक बंद लिफाफा मेज पर गिरा। इसने खोला तो अंदर एक तस्वीर थी,